हेलो गाइस, वेलकम टू द रोहित वाइब्स। स्वागत है आपका अपने चैनल में। आज का पॉडकास्ट इज गोइंग टू बी वेरी इंफॉर्मेटिव एंड इंस्पायरिंग एट द सेम टाइम बिकॉज टुडे we have a very special and amazing person who has been doing exceptionally well in her career after facing all the odds in her life. So, Brinda ki journey is very inspiring, and there's a line by Joseph P. Kennedy that when the going gets tough, the tough get going. और मुझे लगता है कहीं ना कहीं उन्होंने इस लाइन को चरितार्थ किया है अपने जीवन में. सो इट्स माय प्लेजर टू हैव Brinda Gupta on our show. So welcome Brinda to the Rohit Vibes. Thank you so much. Before allowing Brinda to talk about her, because she has done a number of things, so I will give her chance to talk about her journey, her story. So I'd like to give a quick intro about her. So Brinda is a Josh Talk speaker. She has given 2 Josh Talks. She is currently an event director in Zero Gravity Photography company. She has also, headed the sales team in the Vermilion Decor company. She is a public speaker. She is, enrolled to the Toastmaster International. She is also a soft skill and corporate trainer. She is also an upcoming NLP coach, which is neuro-linguistic programming. And apart from that, she is also, she is someone who loves to dance and talk about mental health and mental awareness. So without much ado, I will give the stage to Brinda to talk about her, and then we'll start with the podcast. So Brinda, it's all yours. Please go ahead. Thank you so much for the wonderful intro, Rohit. So I think the intro is self-explanatory. I don't even have to say anything more. You have already, encouraged me way too much. So I just want to say that, there have been challenges in my life. And now I'm at a point where I need to think, what can I do about it? So there's nothing that I can do about it. I can't undo the past. So all I can do is I can focus on my career, which I was not focusing earlier. So I'm trying to put my potential to the best of my ability. And I'm trying to, gather information, and I'm trying to spread information as much as possible. So yes, I do the sales part in the Vermilion Decor. So I'm a wedding planner. And apart from that, I'm a soft skill trainer. So I don't call myself an expert. I'm just a soft skill buddy. I'm just a friend, someone who's very approachable, and I will always be a learner. And apart from that, yes, Toastmasters have taught me a lot more about public speaking. And the reason why I think the Josh Talk has been so successful is because of the experience of Toastmasters. That's a very wonderful public speaking platform. And that clearly tells you what mistakes you can not do when you give a speech. So I think as a part of Toastmasters, it's given me a lot of experience and great pointers. And I think that's why my Josh Talk speech has been so good, because I've, applied all that pointers in the Josh Talk speech. So yeah, I think that's all about me. I totally agree, because I'm also, I was part of Toastmaster International in my college days. So I know, the process which Toastmaster follow is very important, like for, someone who want to pursue career in the public speaking. So I totally second your opinion. And thank you for, telling us about your journey. So that being said, let's start the podcast, and I am sure Brinda will answer all the possible questions today as we move on through this podcast. So please, guys, do watch this complete episode without any interruption in between. So let's start the podcast. So Brinda, why don't you let us know about the soft skill in simple term, because लोगों को मुझे लगता है कि अभी भी इतनी क्लियरिटी नहीं कि सॉफ्ट स्किल है क्या. सो इफ इन अ लेमन टर्म आपको बोलना हो, बताना हो, तो हाउ विल यू डिफाइन सॉफ्ट स्किल? सॉफ्ट स्किल्स बहुत इजी हैं. एक सिंपल भाषा में बोलूं तो अभी हम जैसे जूम में बात कर रहे हैं, तो आप कैसे कैमरा को देख रहे हो, आप सामने वाले को कैसे देख रहे हो, आप कैसे उनको ग्रीट कर रहे हो, आप कैसे उनसे बात कर रहे हो. वो जब आपसे बात कर रहे हैं तो आप बीच में नहीं बोलो, उनकी बात खत्म होने के बाद आप बोलो. तो ये जो बेसिक चीजें हैं हमारी डेली लाइफ में भी, हम जब काम करते हैं तो हम कई लोगों के साथ काम करते हैं, तो कई बार हम सोचते हैं कि हम दोस्त नहीं बना सकते, वो क्योंकि सॉफ्ट स्किल नहीं करने देता है, वैसा है. सो अगर आप में सॉफ्ट स्किल अच्छा हो तो आपको पता होगा कि आपको आसपास के लोगों के साथ कैसे अपना नेटवर्किंग करना है.
क्योंकि आज के टाइम में नेटवर्किंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेटवर्किंग के बिना कुछ भी नहीं है। आप लिंक्डइन ले लो, आप इंस्टाग्राम ले लो, आप कोई भी सोशल मीडिया भी ले लो। तो जब कोविड था, सब वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, तो अगर आपको किसी से कम्युनिकेट भी करना होता है तो आप कैसे करते हो, कैसे आप उनसे बात करते हो। एंड इवन अगर आप कोई इंटरव्यू में जाते हो तो आप कैसे जाते हो, आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हो। तो ये सारी चीजें सॉफ्ट स्किल्स में आती हैं। तो अपने क्या सोचते हैं, अपने को जब एक जॉब मिलता है अपने को लगता है कि अपने को बस लैपटॉप पे काम करना है और काम खत्म। बट आपको किसी को रिपोर्ट करना पड़ता है, तो उसके लिए आपको बात करनी पड़ेगी। अगर आप मैनेजर हो, आपको टीम संभालना पड़ता है, तो टीम को कैसे साथ में लेके चलना है, वो भी एक सॉफ्ट स्किल है। अगर आप कंपनी के फाउंडर हो, तो आपको एम्प्लॉयज के लिए सोचना होगा, उनकी वेलफेयर के लिए सोचना होगा। तो वो आप कैसे उनको अप्रोच करोगे, वो भी सॉफ्ट स्किल है। सो सॉफ्ट स्किल हमारी डेली लाइफ में काम आती है, बट किसी को मालूम नहीं है कि यही चीजें सॉफ्ट स्किल्स है। So it's that, soft skills are very basic. It's a part of our everyday life. Yeah. Agreed. I mean, these are very, basic pointers जिसको लोग often avoid करते हैं, समझ नहीं पाते, कहीं ना कहीं उनको लगता है कि this is something, चलो इसको avoid करके we can go ahead, but ऐसा होता नहीं है. Yes. I do agree. So now there is a common myth amongst people that soft skill can't be learned because it is something which is inherited. So can you please burst this myth to our audience today? Definitely. अगर आप देखोगे, मेरे पापा एंड माय मम्मा, दे आर वेरी रिजर्व्ड काइंड ऑफ पीपल। वो सोशलाइजिंग वगैरह ज्यादा नहीं करते, और मेरे अंदर सोशलाइजिंग बहुत ज्यादा है, नेटवर्किंग बहुत ज्यादा है। सो अगर ये इनहेरिटेड वाली क्वालिटी होती तो मुझ में दूर दूर तक ये नहीं आता। सो सॉफ्ट स्किल इज नॉट समथिंग दैट यू लर्न बाय बर्थ और इट्स देयर इन यू बाय बर्थ। आपको एक्सप्लोर करना पड़ता है कि सॉफ्ट स्किल में आप किस चीज में सबसे ज्यादा स्ट्रांग हो। सो मैंने ये तब डिस्कवर किया जब मैं इवेंट्स करने लगी। तो मुझे सब लोग बोलते थे कि तुम कोऑर्डिनेशन अच्छा करती हो, तुम बात अच्छा कर लेती हो, तुम एक एक्सपीरियंस अच्छा देती हो। तो मुझे लगा मैं क्लाइंट सर्विसिंग में अच्छी हूँ, क्योंकि क्लाइंट सर्विसिंग में बातें होती हैं, आप लोगों से बात करते हो। सो दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड दैट ये जो एक मिथ है ना कि हमारे अंदर है सॉफ्ट स्किल, हमें जन्म से मिला, ऐसा नहीं है। सी एवरीबडी हैज गॉट अ यूएसबी इनसाइड देम एक्सेप्ट फॉर हार्ड स्किल्स। सॉफ्ट स्किल्स में कुछ भी हो सकता है। मे बी आपकी इमेज डेवलपमेंट, जो आप अपने आप को अपना अपीयरेंस रखते हो, वो बहुत स्पेशल हो, या कई लोग बातें बहुत अच्छी कर लेते हैं, या कई लोग पर्सनालिटी वाइज बहुत अच्छा करते हैं, या कई लोग एटिकेट्स बताते हैं कि डिनर में आपको कैसे डिनर करना चाहिए, आप टेबल पे बैठे हो तो टेबल एटिकेट्स कैसे फॉलो करना है। सो सॉफ्ट स्किल्स, देयर आर सो मेनी कैटेगरीज व्हिच आर वेरी अनएक्सप्लोर्ड। कई लोगों को नहीं मालूम ये सारी कैटेगरीज। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सॉफ्ट स्किल्स आपके अंदर है, बट यू हैव टू आइडेंटिफाई विच इज योर स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट एंड यू नीड टू डेवलप दैट। अब मैं सेल्स कर रही हूँ, तो मेरी दिन भर में 10 अलग क्लाइंट से बात होती है, सबका अलग वेवलेंथ है, सबका अलग बैकग्राउंड है। सो मुझे सबके साथ अपना तरीका बदलना होता है बात करने का। सो दैट इज सॉफ्ट स्किल्स। तो मैंने अपने अंदर से समझा, आई गॉट टू नो दैट आई एम गुड इन कम्युनिकेशन। So I took that and I started developing that. And I develop that every day. क्योंकि जो मेरा वर्क एक्सपीरियंस है वो मुझे इतना एक्सपोजर देता है। This myth needs to be busted. It's not that soft skills are inside you. You need to discover कि आपके अंदर वो कौन सी स्ट्रॉन्ग क्वालिटी है जिसको आप डेवलप कर सकते हो। अब आप देखोगे, there are so many motivational speakers. So they have understood that they have that motivation inside them and they are developing that so that they motivate other people. मैंने भी जो जोश टॉक में किया वो एक मोटिवेशनल स्पीच है। हाँ, ऑफ कोर्स वो मेरी एक लाइफ जर्नी है, बट आई एम ट्राइंग टू पोर्ट्रे इन अ वे दैट इट मोटिवेट्स पीपल एंड दे नो व्हाट दे नीड टू डू इफ दे आर इन अ बैड मैरिज। सो इट्स ऑल अबाउट डिस्कवरिंग। आपके अंदर हो सकता है, बट यू नीड टू डिस्कवर व्हाट इज दैट एंड यू नीड टू टेक एफर्ट्स टू डेवलप। अगर आप उसको डेवलप करने के लिए एफर्ट्स ही नहीं लोगे, so then you're not going to grow in your career. You might be earning very good, but you're still going to be stuck at the same place. You're going to have issues talking to people. You're going to have issues overcoming your fears. All that is going to be there. So you need to discover and develop. It's the DD rule: discover and develop. Yeah. Great. DD rule. मुझे भी ये याद रहेगा. Usually people क्या, लोगों के अंदर वो होता है ना कि they वो discover करते हैं, but again they are not going to practice that. और जब तक मुझे लगता है कि आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो परफेक्शन आएगा नहीं लाइफ में. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि डिस्कवरी के साथ उसको आप प्रैक्टिस भी करें अपनी लाइफ में. एंड यू आर वेरी राइट कि आई हैव आल्सो गॉन थ्रू वीडियोस ऑफ मेनी मोटिवेशनल स्पीकर्स. तो
ऐसा नहीं हुआ कि एक दिन में उन्होंने वो उस लेवल पे जाके वो पहुंच गए हैं, उन्होंने भी टाइम लिया है. They have given a lot of speeches through in the form of storytelling or what. I mean, their strength are, but the thing is कि 50 videos or 100 videos बनाने के बाद they have attained that perfection कि नहीं यार, they are able to connect with the audience. So it's all about how much you practice your strength. Thank you. Yes. Great duty role. Yeah, So the third question is like, again, there's a common myth which I have also seen amongst the people that like कि when we talk about soft skill तो लोगों के जहन में एक बात आती है कि it's only about limited to the communication skill. तो हम ये सोचते हैं कि सॉफ्ट स्किल सिर्फ कम्युनिकेशन, अगर अच्छे से बात कर लेते हैं, लेट्स से किसी से मैंने स्ट्रेंजर से बात कर लिया, किसी अननोन पर्सन से भी मैंने अगर अच्छे से बात कर लिया तो मैंने सॉफ्ट स्किल को एकदम कमांड कर लिया, व्हिच आई थिंक इज नॉट ट्रू. तो इस पे आपका क्या टेक है? व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? So soft skill is definitely not limited. Thing is, now since we're all working professionals, जब हम ऑफिस जाते हैं, हमें कोई इश्यू रहता है, कोई वर्क रिलेटेड, so then we sit and we think कि कैसे हम वो इश्यू रिजॉल्व कर सकते हैं. जुगाड़ बोलते हैं ना सब लोग, तो हम लोग सोचते हैं कि हम लोग क्या जुगाड़ निकाल सकते हैं. So what is that? That's problem solving skills. अब अगर आपके पास एक सिचुएशन आती है ऑफिस में and you need to crack that, then you start thinking कि मैं इस क्रिटिकल सिचुएशन को मैं कैसे हैंडल करूं. सो दैट्स क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स. इसी में आपका 2 सॉफ्ट स्किल्स आ गया. नाउ अगर आप नए जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, आपको इंटरव्यू के लिए जाना है, आपको क्या कपड़ा पहनना है, सही पहनना है कि नहीं, मतलब यू हैव टू मैच इट अकॉर्डिंग टू एन इंटरव्यू आउटफिट. दैट्स कॉल्ड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट. नाउ आप एक आउटफिट पहन के इंटरव्यू में जा रहे हो, how you're presenting yourself, how you're talking to the interviewer, that's called image development. वो आप अपना image कैसा बता रहे हो उनको, correct? Now suppose मैंने जोश टॉक में बात किया. Now there are so many speakers out there जो motivation पे बात करते हैं या कोई real time issues के बारे में बात करते हैं. So that all comes under motivational strategies. So that's also soft skills. अब आप कोई situation में हो, आप कैसे उस situation में react करोगे? Like, are you going to react proportionally to what the situation is, or are you going to overreact, or are you not going to react at all? That's again behavioral outcome. That also comes under soft skills. So soft skills इतना underrate हो गया है कि people think कि सिर्फ बात करना communication है. नहीं, अगर आप socialize भी नहीं करते हो, अगर आप किसी से बात भी नहीं करते हो, अगर आपका खाली desk job है and you're very happy कि नहीं मैं तो अपना सिर्फ काम करके जाऊंगा या जाऊंगी, बट वो डेली में आप इतने सिचुएशंस हैंडल करते हो, सो वो हैंडल करना ही प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया. आप कैसे उसको एनालाइज करते हो, वो एनालिटिकल स्किल्स आ गया. सो देयर आर सो मेनी सॉफ्ट स्किल्स इन आवर डेली लाइफ व्हिच इज नॉट ओनली कम्युनिकेशन. सो पीपल नीड टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू सी एंड अंडरस्टैंड मोर कि सॉफ्ट स्किल इज अ वेरी वाइड अम्ब्रेला. यू हैव अ लॉट ऑफ कैटेगरीज, सो यू नीड टू एक्सप्लोर एट व्हिच पार्ट आर यू गुड एंड यू नीड टू डेवलप दैट. सो दैट्स अबाउट इट. Rightly said. I totally agree with you because ये I believe ये बहुत बड़ा myth है लोगों के अंदर कि because they think कि सिर्फ communication करने से ही we have mastered this soft skill, but जाने में हम एक दिन के अंदर वैसी काफी एक्टिविटीज करते हैं जैसे आपने बताया, critical thinking, lot of things, there are a number of things which is the subset of this bigger umbrella. So I do agree and I think कि लोगों को आज इसके बारे में एक डिटेल्ड आपने बातें बताई और उनको समझ में आएगी सॉफ्ट स्किल का और भी क्या क्या सबसेट्स हैं और हमें किस पे काम करने की जरूरत है. सो इट्स अगेन द सेम थिंग व्हाट यू सेड, लाइक टू डिस्कवर एंड देन प्रैक्टिस करना, उसको डेवलप करना उसके बारे में. थैंक यू. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज when we talk about hard skill, when we compare hard skill and soft skill, so there is a like there's a question like hard skills matter only in stepping your career. What is the role of then soft skill and how does it differentiate you from the pool of resume? When I say resume over here means let's say for a job interview there are a number of resume coming for that interview, and in those resume what is the role where someone has mentioned about their soft skill और उसको वहां पे वो हार्ड स्किल के साथ सॉफ्ट स्किल का कॉम्बिनेशन कितना इंपॉर्टेंट होता है या बिल्कुल ही नहीं होता है. So how will you what is your take, what is your thinking on this? ओके, सो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. एक लड़की थी, जब मैं कॉलेज में पढ़ रही थी, देयर वाज दिस गर्ल, शी हैड टू गो फॉर एन इंटरव्यू फॉर कोटक बैंक एंड देयर वर अगेन 20 पीपल who were also the candidates for the same role for the same job.
Now this girl, she went and she gave her interview. It was all good. And then the HR comes, and when he tells who's going to get selected, she was the only one who got selected. So now when they asked her, I mean, when everybody sort of asked the HR that, I think we all did exceedingly well. Why is it so? We want the results to be explained. The HR said, she is very smart. Okay. So now that girl is me. So क्या हुआ था कि when I went for Kotak interview, I dressed rightly and I presented myself rightly. जो उन्होंने क्वेश्चंस पूछे थे मुझे तब सेल्स का कोई आइडिया नहीं था. आई वाज नॉट एक्सपीरियंस्ड इन सेल्स. और जो मेरे कोलीग्स होंगे, दे आर मच बेटर क्रिएटिव हेड्स, यू कैन से, देन मी. वो लोग और अच्छा सेल्स कर सकते थे, बट उन्होंने मेरे अंदर ना वो एक पैशन देखा. एंड दे सॉ हाउ आई स्पोक. Like I spoke with full confidence. And if I did not know something, I said, no, I do not have absolute knowledge in this, but I'll be more interested to learn and improve my knowledge on this. बाकी candidates ने क्या किया होगा? उन्होंने एक तो they were not presented well. The other thing is when the interviewer would have asked, they would have tried to over impress. Or they would have tried to show कि हम लोग के hard skills बहुत अच्छे हैं. जैसे अगर सेल्स का जो जॉब है, कन्वर्जन्स, हम बहुत अच्छा कन्वर्जन्स कर सकते हैं, हमको यहाँ का मार्केट पता है, हमको यहाँ के कस्टमर्स का साइकोलॉजी पता है. बट उन्होंने ये नहीं कहा कि हाउ स्मार्टली दे कैन टॉक. इफ दे डिडंट नो समथिंग, दे कैन से दैट हमें ये नहीं मालूम. तो उन्होंने मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस देखा, एंड दैट्स व्हाई दे लाइक्ड मी. सो नाउ यू सी हाउ सॉफ्ट स्किल्स स्टैंड्स आउट. सो मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि हार्ड स्किल्स आर नॉट इम्पोर्टेंट. अभी जो मैं जॉब कर रही हूँ, मैं सेल्स का जॉब कर रही हूँ, ऑफ कोर्स मेरा हार्ड स्किल्स इंपॉर्टेंट है. मुझे 1 महीने का पूरा सॉलिड ट्रेनिंग मिला था. So I work on a customer based software every day. I have some regular formats and some groups where I need to constantly update. So there is a process that's followed. I do my process. But how I do my process, how I'm making conversions, how I'm talking to clients, what kind of experience am I giving to my clients, how I'm approaching them, and every client will have a different approach. So I have had clients who will just pay 2 lakh. I have clients who will pay 7 lakhs. So how am I cracking that deal? So that's all about how I'm talking to them. So this is where soft skills come into the place. आप hard skills कितना ही सीख लो, अगर आप एक IT job भी लोगे, you're constantly going to code, right? But you need to report to someone, either your team lead or your manager or anybody above you. How you're going to report them? If you have an issue, how are you going to tell them about the issue? Or if someone under you is having an issue, आप उनके issue को कैसे resolve कर रहे हो? Are you empathizing with them? Are you telling them, yes, I understand what you're going through, I'm so sorry about that? That matters. ना कि अगर मैं ये बोलूं, हाँ आपको प्रॉब्लम है ना, तो मैं क्या करूं, it's your problem, you handle it, you're smarter. So that's not the right way. So that's where soft skills come into place. So that's why soft skills, hard skills are important, but there's an equivalent mix of both. If these both mix are followed, only then you can grow in your career. Salary to मैंने जैसा कहा, you will keep getting. But the question is, everybody wants to grow in their career. So to grow, you need to master your soft skills also. So yeah, that's about it. Being a IT person, I can totally relate to what you said. The last example was quite relatable. So it's very important कि आपके अंडर जो काम कर रहे हैं या आपके ऊपर जो काम कर रहे हैं, दोनों में आप कैसे बैलेंस बनाते हो, by the way you talk, not only by the skill set आपके पास है. For example, like what you said, बहुत अच्छा कोडर हो सकते हैं आप, but it doesn't mean कि आप excel करेंगे उस कंपनी में unless you don't have that soft skill to talk with your leads or manager or your subordinates. Well said. So I believe that soft skill alone cannot help you survive in the market. So a hard skill plus soft skill is a deadly combo, which will help you excel in your career or any path you pursue. So very well said. So on that note, what you said, the next question is the follow-up question, I would say. So how to master soft skill along with nurturing hard skill at the same time? Is it too difficult to do, or for someone who is very college pass out, बहुत ही freshly college से उसने पढ़ाई करके निकला है और उसका पहला job है, and he or she is not aware about this soft skill वाला world? So how to
balance it? How to master the soft skill along with the hard skill? That is the question. जी, अभी सपोज कॉलेज पास आउट्स की बात करते हैं. अगर उनको एक कंपनी में जॉब मिला है, उनकी एफर्ट्स के कारण मिला है, या लक ऑल्सो इज देयर, आई अग्री, बट 90% इज योर हार्ड वर्क. हाउ मच हार्ड वर्क यू पुट इन दैट इंटरव्यू, या आपने बहुत सारे राउंड्स ऑफ इंटरव्यूज दिया है एंड देन यू हैव क्रैक्ड दैट कंपनी. नाउ इफ यू आर पुटिंग एफर्ट्स टू गेट इनटू अ जॉब, टू डू हार्ड स्किल्स, यू नीड टू पुट इन एफर्ट्स in your job to grow in that job. That's very important. अब अगर मैं एक जॉब इंटरव्यू गई हूं, मैंने क्रैक कर लिया है, मैं वो कंपनी में जा रही हूँ, सिर्फ कंपनी में जाके बस अपने डेस्क पे बैठ के काम करने से मैं ग्रो नहीं करने वाली हूँ. आई हैव टू मेक माई सेल्फ रिकग्नाइज्ड. मुझे एक रिकग्निशन, एक अप्रिसिएशन मिलना चाहिए, चाहे मेरे कोलीग्स ही दें, चाहे मेरे मैनेजर्स दें, बट उनसे मिलना चाहिए कि यू आर डूइंग वेरी वेल. नाउ व्हेन दे से दैट मोटिवेट्स यू टू डू बेटर. So, जो strategy managers follow करते हैं by giving recognition and appreciation, that's called motivational strategy. They try and motivate you so that you do better. So, what are they using? They are using soft skills. And when you get motivated and you'll be like, हाँ, मुझे और काम करना है, so मैं अपने कोलीग से पूछ लेता हूँ कि मैं कैसे ग्रो करूं, मैं और कैसे काम करूं. सो यू स्टार्ट नेटवर्किंग, एंड एक बार आप लोगों से बात करने लगो, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ, मैं बात कर सकता हूँ या बात कर सकती हूँ. वो कॉन्फिडेंस आ गया, सो यू आर अ गुड कम्युनिकेटर. दैट कम्स अंडर सॉफ्ट स्किल्स. एक बार आप दोस्त बनाने लगो, देन आपको लगता है कि हाँ, फ्रेंडशिप इज सो फन, और दोस्त बनाते हैं. दैट्स नेटवर्किंग. सो एवरीथिंग इट्स अ प्रॉपर मिक्स. मतलब ऐसा नहीं है कि आप हार्ड स्किल्स पे ही एफर्ट्स डालते रहो, सॉफ्ट स्किल्स में भी आपको एफर्ट्स डालना होगा. एंड जितना हार्ड स्किल्स में लगता है उतना सॉफ्ट स्किल्स में नहीं लगता है. सॉफ्ट स्किल्स में क्या है, आपको जो अपने अंदर का जो हेसिटेशन है, जो फियर है, वो हटाकर आपको थोड़ा सा ट्राई करना होगा. जैसे आप डेली अपने जॉब में और अच्छा करना चाहते हो, वैसे आप डेली किसी भी एक जन से बात करना स्टार्ट करो. तो अभी सपोज आप ऑफिस जाते हो एंड देन आपको लगता है कि ठीक है, चलो मैं कुछ लोगों से बात करता हूँ. सो आप बात करते हो उनके साथ. आप सिर्फ उनसे बात नहीं करते हो, आप उनसे सीखते भी हो. सो इन केस अगर आप सोच रहे हो कि मैं सॉफ्ट स्किल को कैसे डेवलप करना स्टार्ट करूं, पहले स्टार्ट ऑब्जर्विंग. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आप अपने अराउंड अपने कोलीग्स या सीनियर लेवल एसोसिएट्स को देखिए, हाउ आर दे कंडक्टिंग देमसेल्व्स. वो अपने आप को कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, उनका वर्क की तरफ क्या एटीट्यूड है. वो आसपास के लोगों से बात करते हैं तो कैसे बात करते हैं, अपने सीनियर्स के साथ बात करते हैं तो कैसे बात करते हैं. तो वो अप्रोच एक ऑब्जर्व कीजिए, देन ट्राई अप्लाइंग दैट अप्रोच इन योर स्टाइल. आपको किसी को कॉपी नहीं करना है, ये मैं कभी नहीं बोलूंगी. यू ऑलवेज हैव टू मेंटेन योर वैल्यू, योर पर्सनैलिटी, बट यू कैन ऑलवेज लर्न फ्रॉम अदर्स एंड ट्राई implementing it in your style. So आप अपने स्टाइल से फिर लोगों से बात करना स्टार्ट करो. आप देखो कि वो कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, उस तरह से यू कैन ऑल्सो इम्प्रूव योर सेल्फ. और जब आप किसी से इंटरेक्ट भी करते हो, यू आर लर्निंग फ्रॉम देम. वो सिर्फ आपसे वर्क रिलेटेड ही बात नहीं करेंगे, वर्क रिलेटेड भी आप सीखोगे, बट इवन अपार्ट फ्रॉम दैट वो आपसे लाइफ एक्सपीरियंसेस बात करेंगे. तो वी लर्न अ लॉट ऑल्सो फ्रॉम पीपल्स लाइफ एक्सपीरियंसेस. अब जो है, जो जब मैं कुछ गलती करती हूँ या मैं कुछ सिचुएशन में फंसी हूँ, माय पेरेंट्स ऑलवेज टेल मी दैट दिस इज द वे आउट. व्हाई? बिकॉज दे हैव एक्सपीरियंस दिस काइंड ऑफ अ सिचुएशन, सो दे ऑलवेज हेल्प मी. तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अपने पेरेंट्स में कूट कूट के है. सो उस तरह से यू ऑलवेज लर्न. सो इट्स ऑलवेज अ मिक्स. हार्ड स्किल तो आप कैसे भी मास्टर कर सकते हो, आप डेली आप प्रैक्टिस करोगे, यू विल मास्टर. बट अलॉन्ग विद दैट यू ऑल्सो नीड टू बिल्ड अ नेटवर्क. And once you build a network, you will feel stronger, you will feel more confident, you will be a good communicator, and you'll also be able to handle teams under you. अगर आप प्रमोट भी होते हो, you can handle teams under you, because you will start empathizing with people कि हाँ, इनके इमोशंस को हम समझ सकते हैं और इनके लिए हम प्रॉब्लम सॉल्व करने का we can try. So that's how you need to balance. You need to put efforts every single day, like that. Great. I agree. So now the question come, how much value does a soft skill add to our resume, and is it a good practice to mention soft skill in our CV, or there's any thumb rule if you want to talk about it? Yes, definitely you should mention. मेरा भी जो रेज्यूम है, मैं पहले सिर्फ अपने हार्ड स्किल्स लिखती थी वेरी कॉन्फिडेंटली.
When I got to know why soft skills is important to add, that's when I started adding. अब मैं जो इंडस्ट्री में हूँ इवेंट मैनेजमेंट में, यहाँ कम्युनिकेशन, नेटवर्किंग बहुत जरूरी है, एंड ऑल्सो प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्योंकि क्लाइंट आपके पास बहुत सारे सोल्यूशन, बहुत सारे प्रॉब्लम्स लेकर आएंगे, आप कैसे सोल्यूशन ओरिएंटेड उनको आंसर्स दे सकते हो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो मेरे रेज्यूमे में है कि मैं टीम बिल्ड कर सकती हूँ, मैं एक अच्छी लीडर हूँ, मैं टीम मैनेज कर सकती हूँ, मैं कम्युनिकेट कर सकती हूँ, मैं नेटवर्क कर सकती हूँ. सो ये सारे क्या है, इट्स ऑल सॉफ्ट स्किल्स. So that needs to be mentioned, and not just for a creative industry like events, even if it's IT, even if it's any other industry that you're doing, आप हमेशा से देखो आपके अंदर क्या वो चीज है जो बहुत अमेजिंग है, एंड यू वांट टू डेवलप दैट एंड ऐड इट टू योर रिज्यूम. एंड यू ऑल्सो नीड टू टेल कि ये सॉफ्ट स्किल्स मेरे ये जॉब रोल के लिए कैसे सेटिस्फाई होगा, कैसे इसको जस्टिफाई करेगा, हाउ इज दिस गोइंग टू एड बेनिफिट टू द कंपनी. बिकॉज इट्स ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब कंपनी वाले आपके रेज्यूम देखे तो उनको ये दिखना चाहिए कि आपसे कंपनी को क्या बेनिफिट मिलने वाला है. कंपनी हमेशा वो देखेगी, आप अपना बेनिफिट इन टर्म्स ऑफ सैलरी, इन टर्म्स ऑफ वर्क कल्चर, इन टर्म्स ऑफ वर्क एनवायरनमेंट, आप वो सब देखोगे, बट कंपनी ये देखेगी कि आपको तो हम पैसे दे रहे हैं, बट आप हमको कैसे प्रॉफिट दोगे. सो अपार्ट फ्रॉम हार्ड स्किल्स, इफ यू आर गोइंग टू टेल मैं बहुत अच्छे से बात करती हूँ, विच मीन्स मैं नेटवर्क कर सकती हूँ, तो आपका नेटवर्क ग्रो होगा तो आपकी कंपनी के ग्रोथ के लिए अच्छा है. और अगर मैं नेटवर्क ग्रो करूंगी तो मैं और भी लोगों को रेफर करके इस जॉब के लिए लेकर आ सकती हूँ. सो उस हिसाब से द कंपनी विल बी लाइक, अच्छा ये इनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, अपार्ट फ्रॉम द हार्ड स्किल्स ये लोग इसके थ्रू हमारी कंपनी को प्रॉफिट दे सकते हैं. सो दे विल बी मोर इंटरेस्टेड इन यू, एंड दैट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग टू डू. आज के टाइम में सब हार्ड स्किल्स लिख रहे हैं. सो अगर आप सॉफ्ट स्किल्स लिखना स्टार्ट करोगे, यू विल सी द डिफरेंस, क्योंकि मैंने वो डिफरेंस देखा है पर्सनली. सो इट्स डेफिनेटली इंपॉर्टेंट टू मेंशन दैट इन योर सीवी.